Good morning, students. How are you? I hope you all are good and doing well. From today, class 10th CBSE board math classes are going to start for all of you on my YouTube channel, SP Education Hub. SP Education Hub. Learn with SP Sir on my YouTube channel, SP Education 0605. Okay. Now the question arises that why should you study with me? Why you join me? First point is conceptual clarity. All concept will be cleared. Every small concept in every chapter and all the high concept in every chapter will be covered in this series. So first point, conceptual clarity. Second point is basic to standard level. Your level will be grown basic to standard level. In CBSE exam, there are two papers held by CBSE of maths. First is basic level, second is standard level. Same as these classes are going to be covered both levels, basic levels and standard level. Third point is exam oriented study. Means study will be done according to the type of questions being asked in the exams. Okay. Fourth point is CBSE related content. Fifth point, all types, all PYQs solve chapter wise. And sixth point is case based questions will also be solved. These are the plus points of these classes. First, conceptual clarity, basic to standard level, exam oriented study, CBSE related content, all PYQ solve with chapter wise case based questions. Okay, and in this series, the aim is make the students zero to hero. So, headline of this series is zero to hero, and all classes are free on my YouTube channel. My YouTube channel is SP Education 0605. SP Education 0605. Okay, so we start from chapter number first. Chapter first, real number. Name of chapter first is real number. सबसे पहले अपन इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे. बेसिक मीन्स नंबर्स के बारे में. कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर तक पहुंचने के लिए अपन को किन किन नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उन सभी नंबर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे. क्या रियल नंबर के आगे भी कोई नंबर होते हैं, क्या अपने काम के वो नंबर होते हैं या नहीं होते, इन सभी नंबर्स के बारे में अपन नॉलेज लेंगे. तो सबसे पहली जो मैं बात करता हूँ, फर्स्ट नंबर आते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अब सभी को पता है नेचुरल नंबर फर्स्ट 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं. यानी कि वो नंबर्स जिनका यूज़ अपन अपनी नेचर में एग्जिस्ट कोई भी चीज़ है उनको
काउंट करने के लिए करते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स which are using for counting objects starting from 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल N, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू इनफाइनाइट। 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। देन नेक्स्ट होल नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर। जैसे अपन नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को फॉर्म करने के लिए अपन को क्या चाहिए? 0 भी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? 0। तो इसीलिए नंबर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए अपन को 0 की आवश्यकता पड़ती है, नीड होती है 0 की। तो इसलिए होल नंबर कितने बोलेंगे? कंप्लीट वाले नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी कि when we include 0 in natural number, then the collection of numbers is called whole numbers, denoted by W, start from 0 1 2 3 4 and going up to इनफाइनिटी। यानी कि अगर नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अपन 0 को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दें, तो जो नंबर का कलेक्शन बनेगा उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। होल नंबर्स को कैपिटल W के द्वारा डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल W एंड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट नंबर इज integers. Next number is integers. When we include all negatives of natural numbers in whole numbers, then the collection of numbers is called integers. It is denoted by I और Z। यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू इनफाइनाइट। अब इन होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, ये सभी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का क्या कर दिया जाए? नेगेटिव इंक्लूड कर दिया जाए। यानी कि -1 -2 -3 एंड माइनस इनफाइनाइट, ये सभी ऐड कर दिया जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो कलेक्शन बनेगा नंबर्स का, इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज द नंबर्स which can be expressed
in the form of P upon Q. The number which can be expressed in the form of P upon Q, where Q does not equals to 0 and P and Q are integers, and third point is P and Q are co-prime numbers. रैशनल नंबर क्या होंगे? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where Q does not equals to 0. P and Q are integers. P and Q are co-prime numbers. Okay, P and Q are co-prime numbers. मीन्स को-प्राइम नंबर्स का मीन्स क्या होता है? अगर अपन को-प्राइम नंबर्स का मीन्स क्या होता है? अगर अपन P और Q का फाइंड क्या करें HCF, तो क्या आएगा? HCF 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन लिखा 3/4, क्या P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है? यस, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 0 के बराबर नहीं है। थर्ड कंडीशन HCF 3 and 4, क्या 3 और 4 का 3 और 4 का HCF 1 आ रहा है? आ रहा है। देन 3/4 इज रैशनल नंबर। ओके, देन नेक्स्ट is irrational number. The collection of numbers which are not rational. The numbers which are not rational is called irrational number. The numbers which are not rational is called irrational numbers. वो नंबर जो रैशनल नहीं हो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। यानी कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा? जैसे रूट पी, इस फॉर्मेट वाले नंबर सारे कैसे रहेंगे? इरेशनल नंबर रहेंगे। और यहाँ पर पी क्या है? पी यहाँ पर है प्राइम नंबर। यानी कि अगर प्राइम नंबर को रूट के अंदर लिख दिया जाए तो ये नंबर कैसा बन गया? इरेशनल नंबर बन गया। एक चीज़ और है, इरेशनल नंबर या तो इस फॉर्मेट के होंगे, इस फॉर्मेट के रूट पी फॉर्मेट के होंगे, या फिर जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, डेसिमल के बारे में पढ़ा था, तो कौन से डेसिमल इरेशनल होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है अपने पास में? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा रियल नंबर कौन सा होगा? रियल नंबर होंगे कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ रैशनल कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, कलेक्शन बनेगा, उनको क्या बोलेंगे अपन? उनको बोलेंगे रियल नंबर। क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसे अब एक डायग्राम बनाते हैं अपन।
देखो जैसे ये तो कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, ये कौन से नंबर बन जाएंगे, होल नंबर्स, उसके बाद में इंटीजर्स नंबर्स, देन रैशनल, उसके बाद में ये अलग से बनेगा कौन सा, इरेशनल नंबर। और रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये कौन सा बनेगा, रियल नंबर। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, all natural numbers are whole number, all whole numbers are irrational number, integer numbers, all integers numbers are rational number, all rational numbers are real number, and all irrational number are real number, and combination of rational and irrational is real number. Okay, so this is the, अब इसके बाद में नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, देखो सबसे पहले अब जो रियल नंबर है इसके बाद में बनता है एक कौन सा, ये रियल बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद में क्या बना, इमेजिनरी नंबर, कौन से, इमेजिनरी नंबर बनते हैं। और इन रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कंसेप्ट आता है 11th क्लास में, ठीक है। अब बात आती है, अपने रियल नंबर की बात कर रहे थे, अब अपन पहुंचते हैं चैप्टर में। कहाँ पहुंचते हैं, चैप्टर में। अब चैप्टर में सबसे पहले पहुंचने से पहले अपने पास दो चीज़ें हो गई, एक तो ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक चीज़ है प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होंगे, द नंबर्स the number which is divisible by 1 and itself only. The number which is divisible by 1 and itself only means prime numbers have only two factors. Prime numbers have only two factors. एग्जाम्पल, अगर अपन एग्जाम्पल लिखे प्राइम नंबर के, तो 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, 11 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, 13 भी 1 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, 17 1 से डिवाइड होगा और 17 से डिवाइड होगा, 19 1 से डिवाइड होगा और 19 से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद में 23 1 से और 23 से, उसके बाद में 29 और 21 और 29 से डिवाइड होगा, उसके बाद में 31, ठीक है, देन 37, ओके, 41 43 47, ठीक है। ये 50 तक प्राइम नंबर, 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 50 तक 15 प्राइम नंबर्स, कितने 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये कौन से नंबर हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कौन सा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, वे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं हो, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। यानी कि द नंबर्स विच हैव more than two factors. The numbers which have more than two factors is called composite number. जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें अपन 44 एक नंबर लिया मैंने, इसके अपन फैक्टर करते हैं। 44 को डिवाइड किया, सबसे पहले किसी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से 11, फिर 11 से 1, तो इसके फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 11, तो इसके कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर्स। The numbers which have more than 2 factors is called composite numbers.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। एक नंबर है किस टाइप का, 4 to the power n इस टाइप का नंबर है, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 4 4 4 अप टू n टाइम्स, इस टाइप का एक नंबर दिया 4 to the power n। फिर n इज नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है, या तो 4 की पावर 1 रही होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 की पावर कुछ भी रही होगी नेचुरल नंबर में से, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी नंबर वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है फॉर विच 4 to the power n, इसका एक्सपेंशन करें, n की किसी वैल्यू के लिए अगर अपन 4 to the power n का एक्सपेंशन करें तो क्या लास्ट में डिजिट इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर क्या डिजिट 0 आएगा, इट इज़ पॉसिबल और नॉट। देखिए लास्ट में 0 जैसे बनता है, जैसे 10 के लास्ट में 0 बन गया, 100 के लास्ट में 0 बन रहा है, 1920 लास्ट में 0 बन रहा है, यानी कि लास्ट में 0 बनने के लिए अपने पास दो चीज़ें होनी चाहिए, 2 और 5। किसी भी नंबर के फैक्टर में अगर 2 और 5 है तो वो क्या बनेगा लास्ट में 0, 5 2 जा क्या होता है 10, क्या होता है 5 2 जा 10। तो किसी भी नंबर की लास्ट में 0 बनाने के लिए अपन को उसके फैक्टर में 2 भी होना ज़रूरी है और 5 भी होना ज़रूरी है। तो अब अपन देखिए इसको कैसे करेंगे, एनी नंबर एंड with 0 have factors 2 and 5। any number and with 0 have factors 2 and 5 and factor of 4 to the power n, 4 to the power n के फैक्टर करेंगे तो 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 और होल पावर क्या कर दें n कर दें, ठीक है। तो अब देखिए 4 के फैक्टर में तो 2 मल्टीप्लाई 2 ही आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 ही आ रहा है, यानी कि 2 तो आ रहा है लेकिन लास्ट में 0 बनाने के लिए अपन को 2 इंटू 5 चाहिए, 5 नहीं आ रहा और 5 नहीं है तो ये नंबर कभी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए किससे डिवाइड नहीं होगा, n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 से एंड नहीं होगा, यानी कि 4 to the power n do not have 4 to the power n do not have 5 as a factor, okay, 5 as a factor, this implies 4 to the power n cannot end with digit 0, 4 to the power n cannot end with 0, ओके। एक बार वापस देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द नंबर 4 to the power n, n is natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n with the digit 0, यानी कि 4 to the power n इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा कहीं भी, इस फॉर्मेट में 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 4 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, n एक नेचुरल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बोला है चेक वेदर क्या n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए इन सभी को सोल्व करें मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए। लास्ट में 0 आने के लिए क्या होगा 10 आना चाहिए 100, इसमें लास्ट में अगर 0 आ रहा है 0 कैसे आता है, फर्स्ट 0 बनता है 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा, 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। इसलिए एनी नंबर एंड any number and with 0 have factors 2 and 5, कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए 2 और 5 तो आने ही आने चाहिए इसमें, तो 4 की पावर n का अपन ने फैक्टर करके देखिए 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ये फैक्टर 4 to the power n do not have 5 as a factor, this implies 4 to the power n cannot
एंड विद जीरो, तो 4 टू द पावर है जो कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है HCF। पढ़ा है आपने HCF? HCF क्या होता है? व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब क्वेश्चन करेंगे HCF और LCM। जैसे एग्जांपल नंबर 2 है आपकी बुक का ही, तो उसमें HCF और LCM फाइंड करना ही है। एग्जांपल नंबर 2 है ऐसे ये रहा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20। 6 एंड 20 का क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है 6 एंड 20 का, 6 एंड 20 का LCM एंड HCF फाइंड करना है। जैसे अपन LCM फाइंड करेंगे, सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? HCF फाइंड करें अपन। HCF फाइंड करेंगे तो 6 का फैक्टर करो, पहले 6 के फैक्टर करेंगे अपन। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। उसके बाद में 20 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 20 के प्राइम फैक्टर्स किए तो 2 से डिवाइड किया 10, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 5, फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 3, एंड 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर के फैक्टर करने पर जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF क्या आएगा? 2 कॉमन आ रहा है और कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका HCF ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू क्या आया? 2। तो HCF कितना हो गया? HCF कितना आया? 2 आया। सेकंड, अब इसका क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करेंगे अपन। LCM ऑफ 6 एंड 20, इसके LCM फाइंड करना। LCM फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक साथ फैक्टर करते हैं 6 और 20। डिवाइड किया 2 से, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 जा 6, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 जा 20, फिर अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड 2 3 जा, फिर 3 का 3 रह जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। उसके बाद में उससे 2 से अगला प्राइम नंबर 3, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, फिर 5 से 5 1 1, जहाँ तक 1 1 नहीं है तब तक अपन फैक्टर करते रहेंगे। तो 6 और 20 के LCM क्या आएगा? इन सभी को क्या कर देंगे? इन सभी को क्या करना है? फिर मल्टीप्लाई करना है। LCM ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। देन LCM ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 60। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization, hence find their LCM। और फिर उसका क्या फाइंड करना है? LCM भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? फैक्टराइजेशन करेंगे इनका। तो 90 सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है? 96। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए। 2 से डिवाइड किया तो 4 जा 8, 1 बचेगा 16 हो गया, 2 8 जा 16,
फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, क्या आएगा 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद में किसके फैक्टर करने हैं, 404 के फैक्टर करेंगे। 404 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड किया 1 0 1। अब 37 किससे डिवाइड 101 किससे डिवाइड होगा, 101 इज ए प्राइम नंबर। सो 101 इज ए प्राइम नंबर, 101 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देन अब फाइंड करना है इसका क्या HCF फाइंड करना है। तो 96 के फैक्टर क्या है, 96 के फैक्टर क्या है, जैसे 96 के अपने पास फैक्टर क्या है, 96 इज इक्वल टू 2 2 ठीक है। और 404 के फैक्टर क्या है अपने पास में, 2 मल्टीप्लाई 101। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से तो यहाँ से ये 2 कॉमन आ गया और ये 2 कॉमन आ गया, बस। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। इनका HCF कितना आ गया, HCF इनका आ गया 4, ओके। अब आगे अपन को इसका क्या फाइंड करना है, अपन को इसका LCM भी फाइंड करना है। तो LCM किसका फाइंड करना है, 96 का एंड 404 का। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन ने यहाँ पे किया था, तो एक साथ LCM के लिए एक साथ डिवाइड करेंगे दोनों को। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4। अगेन फिर किससे डिवाइड करें, अगेन अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इधर 2 1 जा 2, 0 1, ठीक है। फिर किससे डिवाइड कर दें, फिर अपन जैसे फिर वापस 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर 1 0 1। फिर किससे डिवाइड करेंगे, फिर वापस से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, इधर 1 0 1। फिर वापस से किससे डिवाइड कर दें, फिर वापस से डिवाइड कर दें किससे, 2 से, 2 3 जा 6, इधर 1 0 1, ठीक है। फिर किससे डिवाइड कर दें, फिर वापस से डिवाइड कर दें किससे, 3 से, 3 1 जा 3 1। वापस डिवाइड करेंगे किससे, ऐसे ही आया। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो 1 और यहाँ पर 1 0 1। फिर किसी डिवाइड कर देंगे अपन, 1 0 1 बच गया, तो 1 0 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 1, इधर भी और इधर भी क्या आ जाएगा 1, दोनों साइड क्या आ गया 1। तो LCM क्या बनेगा इसका, LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 0 1, ठीक है। तो LCM केवल 96 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 101 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, LCM 9696। दिस इज द LCM ऑफ 96 एंड 404, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 672 एंड 112। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके लिए, HCF फाइंड करने के लिए, किसके लिए, HCF फाइंड करने के लिए। तो अपन को 672 एंड 120 क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करते हैं अपन, 6 के फैक्टर करेंगे अपन,
2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद में सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर है 72। 72 के फैक्टर करेंगे, 72 के 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 12 होगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आया। ठीक है, उसके बाद में 120 इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12 0। उसके बाद में किसी डिवाइड करेंगे, वापस 2 से करो, 2 3 जा 6 30 आ गया। फिर वापस किसी डिवाइड कर दें, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10 15 आ गया। फिर किसी डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15। फिर किसी डिवाइड करें, 5 1 जा 5। ये किसके फैक्टर हो गए, 120 के फैक्टर हो गए। अब इनका अपन को फाइंड करना है क्या, एलसीएम। तो 6 के फैक्टर क्या है अपने पास में, 6 क्या है 2 × 3। 72 के फैक्टर क्या है अपने पास में, 2 × 2 2 2 2 3 3। ये इसके फैक्टर आए। और 120 के फैक्टर क्या है अपने पास में, 120 के फैक्टर है 2 2 2 3 5। 2 2 2 3 5। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, एक तो कॉमन आ रहा है इसमें 2, और एक कॉमन आ रहा है इसमें क्या 3। तो HCF क्या बन जाएगा इसका, HCF ऑफ 6 एंड 72 120 इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6। HCF क्या आ गया 6। अब इसका LCM और फाइंड करना है अपन को, LCM फाइंड करेंगे 6 72 एंड 120 का। ओके, सबसे पहले किसी डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 3 जा 6, इधर 2 2 जा 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 16 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 0। ओके, वापस 2 से डिवाइड करो, इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 3 जा 6। फिर वापस डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10। फिर डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर वापस किससे डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे किससे 3 से, 1 1 5। फिर क्या बचा, डिवाइड किया 5 से, 1 5 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 1, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो LCM ऑफ 6 72 एंड 120 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 × 2 3 3 5। सभी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 360। कितना आएगा 360। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 360। तो LCM ऑफ 672 एंड 120 का LCM कितना आ गया 360। 2 2 जा 4, 2 जा 8 40, और ठीक है 360 की आ गया LCM। सो इस क्लास में अपन ने क्या किया, थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने नेचुरल नंबर के बारे में समझा, द नंबर विच आर यूजिंग फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1
एंड गोइंग अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद में अपन ने होल नंबर के बारे में समझा। व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर्स देन द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स। जीरो स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद में इंटीजर नंबर्स यानी कि होल नंबर्स के कलेक्शन में अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को एडिड कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, इंटीजर नंबर्स। उसके बाद में रैशनल नंबर देखा। रैशनल नंबर के लिए पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होने चाहिए, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, पी और क्यू का HCF 1 आना चाहिए। ये सभी चीज़ें देखी। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे, रूट पी की फॉर्म में होंगे, रूट पी की फॉर्म में होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसके बाद में अपन ने प्राइम नंबर देखा। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के, 2 फैक्टर होंगे। उसके बाद में कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होंगे, मोर देन 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, फिर अपन ने एग्जाम्पल फर्स्ट देखा। ये इस तरीके से अपन ने 4 एग्जाम्पल किए। ठीक है, अब आगे अपन फॉर एग्जाम्पल हो गए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे टुमारो। 1.1 एक्सरसाइज करेंगे कल। तब तक इन क्लासेज को देखिए और बताइए कैसी लगी आप सभी को क्लास। एंड अगेन आई टेल यू, यूट्यूब चैनल SP एजुकेशन 0605। ओके, बाय।